Good morning, sir. Good morning. Good 1.5 morning, mile sir. run test. Good morning. Okay, write down. The test was developed for. The test was developed for college men and women. College men and women to determine VO2 max. प्रोसीजर लिखो. Write down the procedure. 1.5 mile running surface is to be required. 1.5 mile running surface is to be required. And the distance will be covered as fast as possible. And the distance will be covered as fast as possible. It is better to run at an even pace. It is better to run at an even pace until near the end. Until near the end. One trial may be given. The time will be recorded. The time will be recorded in minutes and seconds. The time will be recorded in minutes and seconds. The heart rate is to be recorded. The heart rate is to be recorded at the end of the test. The heart rate is to be recorded at the end of the test. सर लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए. The heart rate is to be recorded at the end of the test.
VO2 max is computed. VO2 max is computed with the following equation. With the following equation. लिखो फॉर्मूला, लंबा है, 2-3 लाइन का फॉर्मूला है. राइट डाउन. द VO2 max is equal to VO2 max is equal to 88.02 plus ब्रैकेट स्टार्ट करो 3.716 into gender. Bracket close. Minus bracket start हो 0.0753 into body weight in pounds. Bracket close. Minus bracket start करो 2.767 into time. अब जेंडर के लिए लिखो 1 फॉर मेल 0 फॉर फीमेल. यहाँ पे जेंडर होगा, अगर मेल है तो 1 करना है और फीमेल है तो 0 करना है. फॉर्मूला में कोई डाउट है? रिपीट करूँ एक बार और फॉर्मूला? Yes, Yes, sir. sir. Repeat it one time. तो VO2 max is equal to 88.02 plus bracket start 3.716 into gender bracket close minus bracket start 0.0753 into body weight in pounds bracket close minus bracket start 2.767 into time bracket close. और जेंडर के लिए मैंने बताया 1 फॉर मेल एंड 0 फॉर फीमेल. ये फॉर्मूला है, ये उतना एक्यूरेसी नहीं है इसमें. इसका रिलायबिलिटी 0.09 के आसपास है. और ये ओपन आउटडोर वाला टेस्ट होता है. VO2 max यूजुअली अगर आपको बहुत प्रिसाइसली अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो एक लेबोरेटरी सेटिंग पे करना होता है, ट्रेडमिल के ऊपर, और मास्क वगैरह, ऑक्सीजन मास्क वगैरह ये सब लगा के, तो उसमें वो एग्जैक्ट निकलता है. इसमें कई सारे वैल्यू कांस्टेंट है, कई सारे वैल्यू वेरिएबल है. तो ये उतना उतना आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है. लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाए मिल नहीं है. तो आप
हैं, ऐसे ओपन में भी इसको VO2 max को निकाल सकते हो। इसके बाद अगला टेस्ट है मर्गरिया कैलमन स्टेयर क्लैम्प टेस्ट। द नेक्स्ट टेस्ट इज मर्गरिया एक स्टेप अप टेस्ट है। सीढ़ी पे चढ़ना होता है, कुछ कुछ स्किप करना होता है, कुछ छोड़ना होता है, जंप करके जाना होता है, ऐसे करके टेस्ट है ये। ये भी एरोबिक टेस्ट है, एनारोबिक कैपेसिटी का टेस्ट है। बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। अभी तक हमने जो दो टेस्ट के लिए बात की वो एरोबिक टेस्ट था। दिस वन इज एनारोबिक कैपेसिटी के लिए ये टेस्ट बनाया गया है। राइट डाउन मर्गरिया कैलमन स्टेयर टेस्ट और मर्गरिया कैलमन टेस्ट। It was developed to assess leg power and activation of the phosphogen energy system. I'm talking about the objective. It was developed to assess leg power. Leg power means explosive strength of your leg. Leg power and activation of the phosphogen energy system. ATPPC जिसको आप बोलते हो। एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। The test was developed to assess or to evaluate or to calculate leg power and एक्टिवेट करना, एक्टिवेशन ऑफ मोबाइल सिम कार्ड एक्टिवेट होता है ना, वो एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोजेन एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वही वाला फॉस्फोजेन, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोजेन एनर्जी सिस्टम। क्लियर है? द टेस्ट वाज डेवलप्ड टू असेस leg power and activation of phosphogen energy system. Clear है? Is it clear? Okay. Yes, Now sir. the equipment needed. क्या क्या चाहिए उसके लिए? You need a stair. अब उसमें आप लिखो a 20 foot or 6 meter flat surface in front of the stair. आपको 6 मीटर एक स्टेयर चाहिए आपको। मैं स्टेयर का जो मेजरमेंट है वो मैं बता देता हूँ। पहले आप लिखो कि 20 feet or 6 meter flat surface in front of the stair is needed. क्लियर है? 9 or more steps with एटलीस्ट 9 स्टेप होनी चाहिए, 9 स्टेयर होनी चाहिए। ज्यादा हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट इट शुड बी रिक्वायर्ड 9 स्टेप्स। 9 स्टेप्स, 9 or more steps with third, sixth and 9th step clearly marked with tape. कौन कौन सा स्टेप को मार्क करना पड़ेगा? तीसरा, छठा और 9th। थर्ड, सिक्स्थ एंड 9th स्टेप मार्क्ड विथ टेप। आपको पैकिंग टेप किसी टेप से आपको उसको
मार्क करना पड़ेगा, ये 3 स्टेप को, बाकी स्टेप को नहीं करना है। नाउ measure the vertical height between the third and ninth step, as this value is used in the power calculation. ये रिपीट समझ में आया? रिपीट एक बार कीजिए। measure the vertical height between third and ninth step. तीसरा स्टेप से 9वां स्टेप का जो वर्टिकल हाइट है, वो हाइट को मेजर करना है, क्योंकि वो पावर कैलकुलेशन में वो यूज होगा। I repeat, measure the vertical height between the third and the ninth steps, as the value is used in the power calculation. उसके बाद और क्या क्या चाहिए आपको? मेजरिंग टेप चाहिए होगा, स्टॉप वॉच चाहिए, टेप चाहिए, जो मार्किंग टेप जिसको बोलते हो, और टाइमिंग मैट अगर आपके पास है। टाइमिंग मैट ऑप्शनल है, अगर है तो वो मैट के जगह पे आप यूज कर सकते हो उसको स्टेयर पे, जो स्टार्ट और स्टॉप को अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता है वो। ओके, ना राइट डाउन द प्रोसीजर, प्री टेस्ट प्रोसीजर भी बोल सकते हो आप इसको। प्री टेस्ट प्रोसीजर पहला लिखो। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द पर्पस of the stair climb test, the procedure is to be demonstrated and described. The procedure is to be demonstrated and described. Practice / trial may be allowed. Practice / trial may be allowed. Okay, now write on the second one. The subject will sprint towards the stair. The subject will sprint towards the stair from the starting point 20 feet away from the stair. I repeat, the client will sprint towards the stair from a standing or from a starting line 20 feet away from the stair. The subject will, next point likho, the subject will run up the flight of stairs. The subject will run up the flight of the stairs, taking 3 steps at a time. Taking
3 steps at a time. Taking 3 steps at a time. Measure the performance. Measure the performance from the time it takes to get from the 3rd step to the 9th step. I repeat once again, measure the time, measure the performance from the time it takes to get from the 3rd step to the 9th step. The goal of the test is, नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में कंटिन्यू कर दो. The goal of the test is to run up the stairs as quickly as possible. आपको जितना जल्दी हो सके आपको 9th स्टेप तक पहुंचना है. सर टू रन ऑफ द हाँ, शेयर के बाद क्या है? the goal of the test is to run up the stairs as quickly as possible. आपका एम, टेस्ट का एम ये है कि जितना जल्दी हो सके आप 9th स्टेयर तक आपको पहुंचना है. Now write down the test protocol. Record the client's body weight in kilogram. टेस्ट प्रोटोकॉल में लिखो पहला, टेस्ट प्रोटोकॉल में पहला लिखो, रिकॉर्ड द क्लाइंट्स बॉडी वेट और सब्जेक्ट्स बॉडी वेट इन केजी. The subject will stand 20 feet away from the stair. The stopwatch will start. The stopwatch will start when the subject's foot hit on the 3rd step and stop when the foot hit on the 9th step. स्टॉप वॉच कब चालू करना है? जब पैर 3rd स्टेप पे पड़ता है. और कब बंद करना है? जब पैर जो है 9th स्टेप पे पड़ता है तब बंद करना है. उसके बीच में आपको एक 6th स्टेप है जो आपको हर बार 3-3 स्टेप एक साथ चढ़ना है. पहला नीचे से एकदम से 3rd में चलना है, 3rd से आपको 6th में जाना है, 6th से आपको 9th में जाना है. तो घड़ी स्टार्ट करना है जब 3rd में पहला पैर पड़ेगा. उसके बाद जब 9th में जाके खत्म होगा, पैर जैसे ही टच होगा वैसे ही आपका स्टॉप वॉच जो है वो स्टॉप हो जाएगा. 3 trials may be given. Three trials may be given with 2 to 3 minutes of recovery time.
The fastest time achieved is recorded for the testing purpose. The fastest time is to be recorded for the testing purpose. 3 ट्रायल में से जो फास्ट, जो अच्छा टाइमिंग होगा उसी को आपने रिकॉर्ड करके रखना है। ये उल्टा कैसे होगा? कैमरा रिवर्स, ये दिख रहा है तुमको? यस सर। ये टेस्ट दिख रहा है? यस सर। अब ये जो एरिया है ये आपका फर्स्ट स्टेयर का बेस है। यहाँ से 20 फीट दूर आपको जगह चाहिए। इधर से रनिंग करता हुआ आएगा। सबसे पहला स्टेप थर्ड में जाएगा, एंड देन सिक्स्थ, एंड देन नाइन। घड़ी कब स्टार्ट होगा? जब ये थर्ड स्टेप में पहला पैर आएगा, आपका घड़ी स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा पैर आपका सिक्स्थ में जाएगा, और जैसे ही आप थर्ड स्टेप आप लोगे नाइन्थ पे, वैसे ही आपका घड़ी जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये टेस्ट आपको दिख रहा है? आपको वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है थर्ड स्टेप से। ये इसको वर्टिकली ऐसे, हॉरिजॉन्टली ये लाइन को ऐसे लेके जाओ, और ये सीधा यहाँ नाइन्थ स्टेप। तो आपका डिस्टेंस जो मेजर करना है वो थर्ड स्टेप से नाइन्थ स्टेप का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपको मेजर करके रखना है। वो कैलकुलेशन में काम आएगा। इज इट क्लियर? सिक्स्थ स्टेप इज सपोर्टिंग है, क्योंकि आप डायरेक्ट 3 से 9 पे नहीं जा सकते, इसलिए आपने थर्ड स्टेप, एक बीच में एक सिक्स्थ वाला जो है उसमें आपको एक पैर रखना है, फिर आपको थर्ड स्टेप में नाइन्थ में चले जाना। ये क्लियर है टेस्ट? यस सर। Yes, sir. ओके, अब इसका मैं ये कैलकुलेटिंग पावर, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये कैसे इसको कैलकुलेट करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका? Yes, sir. हाँ, ले लो इसका। ले लिया? अभी यस इसका सर। नॉर्म्स है, ये इसका नॉर्म्स है। इधर परछाई आ रहा है, एक मिनट। इज इट क्लियर नाउ? क्या नहीं दिख रहा? नो सर। क्या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है? आप बताओ। सर साफ नहीं आ रहा था। नो। थोड़ा नहीं आ ब्लर रहा हो रहा था। अब सही है सर, सही है, सही है। क्लियर है सर। हाँ, ले लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ओके, यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला का ले लिया, इसका भी ले लो। ले लिया सर। ओके, नाउ इसका जो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू बॉडी वेट इनटू 9.807। दैट 807 इज ए कांस्टेंट वैल्यू इनटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मतलब जितना टाइम आपने वो थर्ड स्टेप से नाइन्थ स्टेप में जाने के लिए आपने लिया है, वो टाइम है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉडी वेट इनटू 9.807। दैट दिस वैल्यू इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ये चेंज नहीं होगा, इनटू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। वेट जो है वो केजी में आएगा। हाइट हाइट, जो हाइट है, हाइट क्या क्या चीज का हाइट था? हाइट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड स्टेप टू नाइन्थ स्टेप इन मीटर, ये मीटर में कैलकुलेट करना है, और टाइम जो होगा सेकेंड्स में कैलकुलेट करना है। ये आपका लेग पावर वाट में निकलेगा। लेग पावर जो होगा दैट विल बी, द यूनिट विल बी इन वाट, WATT। ये मर गया। टेस्ट क्लियर है?
ओके। अब अब एग्जाम कल से है तुम्हारा? यस Yes, sir. सर। यस सर। ठीक है, ओके। क्लास ऑफ हो गई क्या?